کوشش نہ کرنا. عالم والا پر عالم والا پر بادشاہ کا بادشاہ بادشاہ کا بادشاہ وہ بادلوں پر آنے والا وہ بادلوں پر آنے والا وہ بادلوں پر آنے والا. ہاللویا ہاللویا. پلیز زور سے پڑھنا. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن لو، الہی محبت. اس کا جو آج کا سرمن پالم سنڈے کا ہوگا محبت کا جھنڈا. تو بڑی خوبصورت تعلیم آج پالم سنڈے کے موقع پر خداوند کے کلام میں سے دوں گا. تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے. تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے. زکریا 9 باب ہے، اس کی 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور ایک ریفرنس خداوند کے کلام سے نکالیے میرے ساتھ. زبور 2 ہے، اس کی 6 آیت. میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کو مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں. اور ایک ریفرنس میں چاہوں گا غزل و گزرات کی کتاب میں سے ہم لیں گے. غزل و گزرات 2 باب اور اس کی 4 آیت خداوند کے کلام میں سے لکھا ہے کہ وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا، اس کی محبت کا پڑھیے، اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت. شکریہ سر بہن جی. آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ٹاپک بتایا ہے کہ محبت کا جھنڈا. تو شرومیت جو تھی وہ سلیمان بادشاہ کی ملکہ تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں تجھے انگورستان میں لے کر چلوں، انگورستان میں لے کر چلوں اور وہاں میرا محبوب ہے. تو اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر ہے، اس کی محبت کا جھنڈا میرے. وہ انگورستان کہتی ہے، انگورستان جہاں پر پیڑ ہوتے ہیں، جہاں پہ پھل ہوتے ہیں، جہاں پہ باغ ہوتے ہیں، انگورستان کہتی ہے. میں تجھے انگورستان میں اپنی محبت کو دکھاؤں. تو انگورستان جو ہے وہ کلیسیا ہے. انگورستان کیا ہے؟ جو چرچ میں آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ انگورستان ہے. اور یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یسوع ہمارا کیا ہے؟ دولہا ہے. ہم اس کی کلیسیا ہے. آمین. اس کی دلہن ہے. لہٰذا جیسے وہ محبت کا اظہار کرتی ہے اپنی ملکہ جو ہے سلیمان بادشاہ کے تعلق سے کہتی ہے کہ اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر ہے. بادشاہ سے بڑی محبت کرتی ہے. تو اسی طرح میں اور آپ کلیسیا بھی جو ہے وہ یسوع سے بہت محبت کرتے ہیں. آمین. کرتے ہیں نا. اس لیے آج کے دن جو پالم سنڈے کی سروس سیلیبریٹ ہوتی ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ دن پیشن گوئی کے ذریعے سے بتایا گیا. خداوند کے کلام میں زکریا کی معرفت بتا دیا گیا یہ وہی دن ہے جو خداوند نے مقرر کیا. دنیا کے اندر دنوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مدر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، فادر ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور عورت کے دن کو وومن ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر سیلیبریٹ کی جاتے ہیں دنوں کو. مگر ان لوگوں کو جو دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آج کے دن کا، ان کو نہیں پتا کہ اناؤنسمنٹ کرنا ہے. مگر دنیا کے اندر مختلف دنوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آج کا دن جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ آج کا دن کے بارے میں کہا گیا بائبل میں کہ یہ وہی دن ہے جو ازل سے خداوند نے مقرر کر رکھا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بنت سیون شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ کیا ہے؟ تیرے پاس آتا ہے. آج کے دن یسوع مسیح کو بادشاہ ڈکلیئر کیا گیا. یسوع مسیح کو، حالانکہ یسوع مسیح پیدا ہوتے ہی بادشاہ ہے، ازل سے بادشاہ ہے. آمین. کیونکہ لکھے جب مجوسی آئے تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آمین. تو یسوع مسیح جب پیدا ہی ہوا ہے تو بادشاہ ہے. اور آج کے دن اس وقت ظاہر نہیں ہوا، مگر آج کے دن خداوند کے کلام میں لکھا ہے آج کے دن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، اپنے آپ کو شو کیا علانیہ طور پر کہ میں بادشاہ ہوں. شاگردوں کو تو بتا دیا. تو اس نے کہا میری بادشاہی تمہارے درمیان آپ پہنچی، میری بادشاہی تمہارے درمیان آپ پہنچی. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہی دن ہے. زکریا نبی نے ہزاروں سال پہلے نبوت بتا دی. کہ کیا بتائی نبوت؟ کہ بنت سیون، اے دختر یروشلم خوب للکار، آج ناروں کا دن ہے، آج للکارنے کا دن ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے.
हालेलुया। वो बादशाह खुदा का बेटा यीशु मसीह, मगर दुनिया के अंदर उस दौर के अंदर तो रोमन दौर का बादशाह था, रोम का बादशाह था, और दीगर बादशाह हुकूमत कर रहे थे, मगर उस दौर के अंदर यीशु मसीह जो है वो बादशाह बनकर आया। और यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था कि वो बादशाह जब आएगा तो वो सादक शाख होगा। क्या होगा? शाखें हम लहरा रहे हैं ना, ये शाखें आपको नजर आ रही हैं, वो सादक शाह है, शाख है। शाख का मतलब है वो क्या है? सादक का मतलब सच्चा बादशाह है। वो क्या है? उसकी बादशाह की इंतहा नहीं है, वो ऐसा बादशाह। दुनिया के जितने भी बादशाह है, हालांकि बनी इसराइल का बादशाह यहोवा था, लिखा बनी इसराइल ने कहा हमें बादशाह चाहिए खुदा, क्योंकि गैर कौमों के पास बादशाह थे, मगर इजराइल एक सी कौम थी जिसे खुदा ने चुना, छोटी सी कौम, उनका कोई बादशाह नहीं था, उनका बादशाह खुदा यहोवा था। और लिखा है जब उन्होंने दुनिया के बादशाह को देखा कि दुनिया के बादशाह उन पर हुकूमत जताते हैं, दुनिया के बादशाह उन पर अपनी हुकूमत बादशाह जाहिर करती है, तो उन्होंने कहा खुदा हमें बादशाह चाहिए। हालांकि खुदा ने वादा कर रखा था मैं तुम्हें बादशाह दूंगा यीशु मसीह के ताल्लुक से, मगर उन्होंने पहले ही मांग लिया। तो फिर खुदावंद के कलाम लिखा है उनको साउल बादशाह दिया गया। कौन सा बादशाह दिया गया? साउल बादशाह। और खुदावंद के कलाम लिखा है वो नाफरमान बादशाह था, खुदा से दूर उसने कौम को कर दिया। इस तरह दाऊद बादशाह भी आया, यूसिया बादशाह भी आया, और 42 बादशाह बनी इसराइल के अंदर आए हैं। 42 बादशाह। अब देखिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है 42 बादशाह इजराइल और यहूदा के कबीलों में से भाई 42 बादशाह, उनमें से चंद बादशाह ही नेक और अच्छे थे, दाऊद जैसे, यूसिया जैसे बादशाह, सुलेमान जैसे बादशाह, मगर बाकी बादशाह जो थे वो बदकार थे, कौम को उन्होंने गुनाह में डाला। वो झूठे बादशाह थे, बदकार बादशाह थे, मगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो जब आएगा तो वो सादक होगा, सच्चा होगा। आमीन। लिखा है निजात उसके हाथ में होगी। आमीन। निजात उसके, लिखा है वो गधे बल्कि जवान गधे पर सवार होगा, लादू के बच्चे पर सवार होगा। आमीन। और लिखा है वो हलीम होगा। क्या होगा? ये 5 बातें उस बादशाह के तरफ से कही गई। वो क्या होगा? सादिक होगा, हलीम होगा, गधे के बच्चे पर सवार होगा, और लिखा है वो क्या होगा? बोलिए। वो गधे के बच्चे पर सवार होगा। यानी 5 बातें उसके अंदर जिक्रिया की किताब के अंदर लिखी है, और यीशु मसीह के अंदर ये बातें पूरी हुई कि यीशु मसीह सादक बादशाह, वो हलीम है, बादशाह है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी, बोलिए मैं हूं। वो सादक है, सच्चा बादशाह है, और कुंवारी से पैदा हुआ है। इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि वो भाइयों कुंवारी वर्जन से लिया गया है। वो सच्चा बादशाह, उसकी जिंदगी के अंदर किसी इंसान का गुनाह नहीं था भाइयों, वो इंसान से पैदा नहीं हुआ बल्कि खुदा से पैदा हुआ, पाक रूह से। हालेलुया। तो वो वही सच्चा बादशाह, खुदा का बेटा। और फिर खुदा के लिखे हुआ सादक यानी सच्चा बादशाह। उसके बाद लिखा निजात उसके हाथ में है। आमीन। वो दुनिया को निजात देने के लिए आया, और उसने जान देकर हम मुझे और आपको क्या की है? निजात दे दी है, निजात दे दी है। और फिर वो हलीम है, हम्बल बादशाह। दुनिया के बादशाह हम्बल नहीं होते, दुनिया के बादशाह से, उनके चेहरों से जो है वो भाई डर जाहिर होता है। दुनिया के बादशाह इस तरह के लिबास पहनते, इस तरह के नजर आते, कद काट उनका, उनसे डर लगता है लोगों को, यानी उनकी दहशत होती है। मगर यीशु मसीह के बारे में लिखा वो ऐसा बादशाह होगा जो हम्बल होगा, हलीम होगा। आमीन। इसलिए उसने कहा मैं दिल का फरोतन, मुझसे सीखो कि मैं दिल का फरोतन और हलीम हूं, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। तुम्हारी जाने क्या पाएंगी? आराम पाएंगी। यीशु मसीह जो बादशाह, इसलिए लिखा है उसे ऐसे ले गए, भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता। जैसे भेड़ ज़िबा होने के लिए जाती है अपना मुंह, यानी यीशु मसीह जो है वो भाइयों हलीम बादशाह है, उसके अंदर हलीमी पाई जाती थी। और उसके बारे में लिखा है कि वो जवान गधे पर सवार लादू के ऊपर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुनिए बेटा, खामोश हो जाए 2 मिनट बस खत्म करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा, सुनिए, यीशु मसीह ने लिखा है जब बैत फिगा के अंदर से निकलकर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, सयून में से कहा गया सयून की बेटी शाद हो। सयून जो, क्योंकि यरूशलेम के लोगों को, यरूशलेम जो था सयून के पहाड़ पर मौजूद था, और बनी इसराइल को सयूनी लोग कहा जाता था। इसलिए लिखा है ऐ दुख्तर सयून के लोगों, दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार। सयूनी लोगों से कहा गया, यरूशलेम से कहा गया,
कि खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जब वो बैत फिगा के अंदर से निकलकर यीशु में दाखिल हुए तो उसने शिगिर्दों से सबसे पहले क्या कहा कि जाओ फला जगह पर तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बधा हुआ मिलेगा, तो अगर कोई पूछे उसे खोल के मेरे लिए ले आओ, कहो कि ये मालिक को जरूरत है। तो लिखा है कि जब वो शिगिर्द गए उन्होंने देखा है गधी बंधी हुई है, बच्चा भी लादू उसके साथ। जब उन्होंने खोलने लगे तो मालिक ने पूछा, उनके खुदावन को जरूरत है, उसने खुदावन को जरूरत है तो ले जाओ। हालेलुया। मैं चाहूंगा उसे रूह कुदस से पाकरू से आगाही होगी। सही तालीम मारी जैसा तालीम मारी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यानी फरिश्तों के जरिए से, नबूवत के जरिए से खुदा क्या करता है, गाइड कर देता है। उन्होंने क्या यीशु से चाहिए कि सारा कुछ ही हाजिर है। हालेलुया। मेरे ईमान उसने ऐसा कहा होगा, आपका क्या ईमान कहता है? ऐसे ही उसने, इसकी बात से पता चलता है उसने गधी की उनका बच्चा भी नाल लाए। आमीन। लिखा है वो लेकर आए, तो लिखा है यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह लिखा है गधे के ऊपर उन्होंने कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। उनको पता चल गया कि यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा भी है, काहिन भी है। और फिर उनको ये भी पता था कि वो क्या होगा, बादशाह है। वो क्या है? बादशाह की निशानी थी कि वो गधे पर बैठेगा। बनी इसराइल को घोड़े पालने के लिए खुदा ने मना किया था। खुदा ने कहा था कि बनी इसराइल घोड़े ना पाले। घोड़े पालने वाले जो बादशाह हैं वो जंग करने के लिए आते हैं, मगर यीशु मसीह गधे पर इसलिए बैठा क्योंकि वो जंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो क्या करने के लिए आया, निजात देने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया। आमीन। दुनिया के, मैं बता रहा हूं, घोड़ों पर आते हैं ताकि वो जंग करें, जंग के जरिए से वो जीतते हैं, मगर यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर आया, हलीम बादशाह, ताकि हमें निजात दे सके। और उसने फिर क्या किया, हमें निजात दी या नहीं दी? हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है भाइयों। तो लिखा, सुनिए, खुदावंद के कलाम लिखा है गधे के ऊपर कपड़े बिछाए, फिर नीचे उन्होंने कपड़े बिछाना शुरू किए। लोगों को पता चला कि ये यीशु नासरी बादशाह का बादशाह दुनिया में आ गया है, जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी बाबत ज़िक्रिया की मार्फत नबूवत की गई। क्या बिनते सिय्योन खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर बल्कि जवान लादू पर सवार है। उनको पता चल गया गधे पर जब यीशु मसीह बैठा। उन्होंने नारे मारना शुरू कर दिए। कौन से नारे? होशाना। कौन से नारे थे? कौन सा, क्या नारा था? होशाना का मतलब क्या है? सुनिए, वो ज़ैना भी उससे कहते हैं लैंग्वेज के अंदर, वो शीना भी कहते हैं, वो ज़ैना भी कहते हैं। आमीन। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब उन्होंने नारे मारना शुरू किए तो होशाना के नारे, होशाना का मतलब होता है, सुनिए, होशाना का मतलब है ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली दे। तो बादशाह से वो कहने लगे, ए खुदा हमें बचा, कहने लगे मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। दुनिया के बादशाह इंसानों की चॉइस से आते हैं, इंसान वोट के जरिए से उनको चुनता है, मगर ये वो बादशाह है जो इंसानों ने नहीं चुना बल्कि खुदा ने चुना। आइए इस बात को सुनें। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहा गया कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये बादशाह खुदावंद के नाम से आया है। और लिखा है होशाना का मतलब मैंने बताया, बचा हमें, हमें खुशहाली दे। इसका मतलब है वो नारे लगाने लगे। या कहो कि ए खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली दे। या आप एक लफ्ज ही बोल सकते हो, वो ज़ैना, होशाना, होशीना भी कह सकते हैं। तो मैंने बताया हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बोल रहे थे, उर्दू के अंदर होशाना आप कह सकते हैं। तो कहने का मकसद है इसका मतलब हमें बचा और हमें क्या कर, खुशहाली बख्श दे। उन्होंने ज़ैना का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि उसका मतलब था हमें बचा और हमें खुशहाली दे। मगर मेरा और आपका जो नारा है वो ज़ैना भी है, मगर आज मुझे और आपको बचा लिया है। वो कह रहे थे हमें बचा और हमें क्या कर, खुशहाली दे। मुझे और आपको यीशु ने अपनी जान देकर क्या किया है, बचा लिया। अब हम कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। कौन सा नारा लगाते हैं? हालेलुया। हालेलुया का मतलब है, क्या मतलब है? खुदावंद की तारीफ। आमीन। कि हम बचा लिए गए हैं। मगर आज के दिन हम होशाना के भी नारे लगा सकते हैं, मगर आज का दिन जो है हमें वही खुशी करने का दिन है। आसमानों पर खुशी मनाई जा रही है, जमीन पर खुशी मनाई जा रही है, हर चर्च के अंदर मनाई जा रही है, नहीं मना रही, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ है, गधे पर सवार हुआ है। हमें निजात मिल गई है, हम इसलिए हालेलुया का नारा लगाते हैं। जब आसमान पर जाएंगे तो वहां पर भी कौन सा नारा लगाएंगे? हालेलुया।
कौन सा नारा लगेगा? आसमान पर जब जाएंगे तो यही नारा होगा, हालेलुया। मगर आज का जो नारा है वो ज़ेना। क्या नारा है? मगर कुछ लोग जो थे फकी फरीसी, वो आगे और कहने लगे ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा यीशु नासरी, नासरत का नबी यीशु यहाँ पर आया है, वो बादशाह बनकर आया। उन्होंने कहा नबी आ गया, क्योंकि यीशु मसीह नबी भी है, मैंने बताया वो काहिन भी है, वो बादशाह भी है, वो खुदा का बेटा भी है, हालेलुया। तो वो कहने लगे क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा नासरत का नबी यीशु यहाँ पर आया है, वो बादशाह है, गधे पर सवार है। वो कहते अच्छा, वो कह रहे हैं चुप करा कर शोर पा रहे हो, ज़ेना हो ज़ेना हो ज़ेना लग रहे हैं। यीशु के कोल आ गए लोग और हला के यीशु की कहते कि इनको चुप करा दे। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे, हालेलुया हालेलुया। अगर आप चुप हो गए तो ये दीवारों को पत्थर चला उठेंगे, मगर इनको मौका ना दें, पत्थरों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप खुद नारे मारें, ललकारें, क्योंकि आज का दिन होशाना का नारे मारने का दिन है, खुशी का दिन है, आमीन। इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया? ए बिन्ते सिय्योन, ए बनी इस्राएल, खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे के बच्चा पर सवार है, बल्कि जवान लादू पर सवार है, लिखा वो सादक है, निजात उसके हाथ में है, वो बादशाह है, आमीन। ऐसा खुदावंद का बेटा वही दुनिया में आया है, वो बादशाह बनकर आया है, वो बादशाहों का बादशाह है। और आखिरी बात सुनिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसकी रान के ऊपर लिखा है, बोलिए उसकी रान के ऊपर क्या लिखा है? मकाशिफ किताब में बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, भाई वो बादशाह है, वो पैदा होते ही बादशाह है। हम क्या है? उसके बेटे बेटे हैं, आमीन। तो भाइयों हमें आज नारे मारने का दिन है, हमें नारे मारने हैं, यीशु मसीह को बादशाह मानना है। तो नारे फिर मारे, फिर खत्म करें, फिर चलते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा भाइयों से पहले आज रिक्वेस्ट की जाएगी, मैं नारा लगाऊंगा, आपकी आवाज आनी, बहनें अभी खामोश रहेंगी, ठीक है ना? देखते हैं कि जोर से कौन नारा लगाता है। हाँ जी, आपकी आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, कसम तैयार है? बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। एक मिनट, वो नारा ला रहे नहीं, ऐसे तो नहीं, मैं हाथ खड़े करके पता चले बादशाह का बादशाह। बनी इसराइल को पता चल गया, वो कितने खुश हो गए, मुझे निजात देने के लिए आया, उसने हमें निजात दे दी है, हमें तो उससे ज्यादा खुशी मनानी है। अब दोनों हाथों करो, ठीक है? हाँ जी, 1 2 3, बादशाह का बादशाह। जो तो डिवारी आंधी से फिर पता लगेगा, फिर आवाज नहीं निकलती। हाँ जी, 1 2 3, बादशाह